ओके so let's continue. See, I am going to discuss briefly what we have done so far. Okay, so many students had confusion, okay, regarding the thing. So just let clear all that confusion, then we'll proceed the class. Okay, so see, we have considered the elastic vibration of the crystal, right? Elastic vibration of the crystal. Okay, so while taking the assumption that there is an elastic vibration in crystal, the wave which has generated is called the elastic wave. Okay, एक ही वन बाय वन चलते हैं, ठीक है ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. So I want you to write all these points. बहुत फास्ट गई है, सो ये रिपीट करना. सर आवाज कम आ रही है. आवाज कम आ रही है यस सर. अभी? द रिकॉर्डिंग भी ऑन है. अभी आ रही है आवाज? बहुत फास्ट में बोलती है. आवाज बहुत ही कम है. रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से तो हो रही है. नहीं है, वो सर शो नहीं कर रहा है. लेकिन सतीश सर ने, जो मैनेजर हमारे, उन्होंने शायद ऑन नहीं किया. मेरी तरफ से तो ऑन ही है. अभी भी नहीं शो कर रहा है? नहीं सर, नो सर. मैंने तो ऑन कर रखा है. ओके, एक मिनट रुकना. सर रिकॉर्डिंग तो ऑन कीजिए. नहीं नहीं, वो स्टूडेंट कह रहे हैं उन पे शो नहीं कर रहा है वो. ठीक है. हेलो, एक्चुअली रिकॉर्डिंग ना चल रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, डोंट वरी, अभी शो हो जाएगा आपको. आवाज आ रही है ना अभी? वॉइस क्लियर है? Okay, so now what I was saying, that we have considered the elastic vibration of the crystal. Okay, just write point by point. We have considered the elastic vibration of the crystal, right? Elastic. हाँ तो ये जो पॉइंट तो दिखा रही है, बंदी दोनों हाँ, उसी के लिए ही है, उसी के लिए. Elastic vibration of crystal. Okay, hence we can say that the wave which has generated is called the elastic wave. Hence the wave which has generated it called elastic wave. Okay, it's called the elastic wave. ठीक है ना? Now vibration is associated with the wave. Vibration is associated with the wave, and from the de Broglie hypothesis, we know that a moving wave is associated with some particles. ये हमको पता है that the moving wave is associated with the particles. That is, there must be a particle associated with this wave. ठीक है ना? There must be a particle which has associated with this wave, and that particle is called what? Anyone can say? Phonons. Okay, ठीक है ना? यहां पर क्या हुआ, हमने इलास्टिक वाइब्रेशन कंसीडर किया. इलास्टिक वाइब्रेशन कंसीडर करने से एक इलास्टिक वेव जनरेट हुआ.
And from the de Broglie hypothesis, we know that a moving wave is associated with a particle. That means there is some particle which has associated with this wave, and that particle is called phonons. Okay, the particle associated with this elastic wave are called phonons. आपने पढ़ा होगा phonons के बारे में. What the basically phonons are? Phonons are the quanta. Okay, phonons are the basically the smallest quantum of the elastic wave. You guys have studied regarding the photons. Photons के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है. What are the photons? Basic quanta, smallest quanta of the electromagnetic wave. In a similar way, the particle associated with the elastic wave is phonons. Okay? अभी तक यही जानते हैं. हम आगे phonons को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे. All right? Now, what is basically phonons are? Phonons are the basically a bosons. Okay? You can also write here phonons or bosons. Just write here. Phonons are bosons. Bosons means it will follow the Bose-Einstein statistics. That is, it follows BE statistics. That is Bose-Einstein statistics. Okay? We will discuss some more thing about the phonon, but later on. एक बार हमारा one dimensional diatomic lattice complete होगा, then we will discuss about the phonons. ये दो पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है ना? देखो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ. कल कुछ लोगों का डाउट था कि सर वेव्स के रिगार्डिंग डाउट था, है ना? सब क्लियर करूंगा. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर. बेसिक से स्टार्ट किया कि अगर किसी चीज कोई चीज छूट गई हो बताने में, वो एक बार पूरी हो जाए. We have considered the elastic vibration, okay, in the lattice of the crystal. Hence, the wave which has generated, I told you the wave which has generated is called the elastic wave. And we know from the de Broglie hypothesis, the particle is mandatory to associated with the wave, and here that particle is phonons, and phonons are the bosons which follow the Bose-Einstein statistics. All right, now let's do some talk regarding the long wavelength limit. कल एक लोग का डाउट था ना regarding the long wavelength limit. Okay, देखो होता क्या है. We got our omega expression like omega is equals to under root 4 beta by m sine ka by 2. That what we got. Right? ये हमें मिला था. Okay? We have considered the long wavelength limit. मैं एक बार फिर से पूरी चीज कर रहा हूं. Long wavelength limit. Long wavelength limit. What is basically long wavelength limit is? Lambda is tending to infinity, and hence, or since lambda is 2 pi by k, that is k tending to 0. ठीक है? Now, as k tending to 0, the sine of theta is basically what? Sine theta. Okay? That is, the expression for omega has been modified as omega is equals to under root 4 beta by m, that is ka by 2. And when 2 or 2 will cancel out, you will get omega is equals to ka root under beta by m. ये एक्सप्रेशन हमें कल भी मिला था. And with the help of this expression, we had find out the what? Group velocity and phase velocity of that wave. Now, देखो होता क्या है, ये long wavelength का मतलब क्या है. देखो,
अगर मीन्स अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं कि लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब क्या है, व्हाट इज बेसिकली लॉन्ग वेवलेंथ? लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब यही है, एक अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना, एक एजम्पशन कि अगर इफ द वेवलेंथ टेंडिंग टू इंफिनिटी then k will tend to 0. But the crux of this means you can say this point is lies somewhere else. And the crux is as you study about the long wavelength limit or long wavelength region, the omega which you got, is ka under root beta by m. And with the help of this frequency, when you get the phase velocity, so now, when you get the phase velocity, that is omega by k, it comes out what? A under root beta by m? A under root beta by m? अब यहां पे सुनना, यहीं पे सारा है। इस तरह की प्रॉपर्टी, this property is shows by some wave. There is a wave which shows this property. Can anyone say what is that wave? वो wave कौन सी है? Property means their angular frequency also is directly proportional to k. Yes? Sound wave. Okay? That wave is a sound wave. If you analyze the dispersion relation of the sound wave, you will get omega is directly proportional to k. And when you find the sound wave velocity or speed of sound wave, you get exactly this type of relation, a under root beta by m. Okay, ये आता कैसा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ. Let's suppose velocity of sound, इसको हम कैसे represent करते हैं? It is represented by bulk modulus divided by the density. Okay, it is basically divided by the B is represented by the B stand for bulk modulus. Bulk modulus and rho is the density. Density of what? Density of crystal or cell, unit cell. Density of crystal or lattice. Okay. If we talk about a cubic lattice, मैं इधर लिख, इधर ये चीज क्लियर है ना? ठीक है ना? मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं. देखना, bulk modulus and rho. Here we are considering, let's suppose there is a cube, there is a cubic crystal. Okay, there is a cubic crystal. Obviously, let's suppose the side is A. Then what will be the volume of this crystal? Volume will be what? A cube. And what should be the density? Density will be mass upon volume. ठीक है ना? अभी ये मास क्या है? यूनिट सेल का मास है, हमें उसमें नहीं जाना है. ठीक है ना? मास अपॉन वॉल्यूम. व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई बताएगा? बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन कैसे होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय B इज इक्वल टू माइनस V dP by dV. क्या यही होता है? माइनस V dP by dV. सी, what can you write for the P, dP? dP को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? See, P is a pressure here and we know that pressure is equal to what? Force upon area. Pressure is force upon area. What should be the force? Force कितना होना चाहिए? Can anyone tell? What should be the force here? Or you can directly like write as change in force. Change in force कितना होना चाहिए? If the spring constant is beta and displacement, let's suppose A, then, or you can take the displacement is x. No, we have represented, we have represented A for the volume purpose side, so you can take the displacement at delta x. आप delta x को consider कर लो. Okay, so क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? For writing our delta p, can we write like this, that delta p or dp is equal to beta delta x upon a square? कैसे लिखा जा सकता है? किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई ये क्या है? फोर्स ही तो है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द एरिया, दैट इज चेंज इन प्रेशर. ठीक है,
ना सॉरी नहीं नहीं अच्छा प्रेशर okay yes minus will be there minus beta delta x by a square okay now can anyone say what should be the volume delta v dv कितना होना चाहिए और डेल्टा v कितना होना चाहिए change in volume it should be what a square delta x ठीक है ना a square delta x ठीक है ना जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस थ्री वैल्यू इधर इन हियर इन बीटा और इन बी बल्क मॉडुलस व्हेन यू पुट दिस वैल्यू आप करके देख लेना व्हेन यू ऑल पुट दिस वैल्यू इन अ बी एंड व्हेन यू विल पुट द बी एंड रो हियर इन वेलोसिटी ऑफ साउंड you will get exactly as vs is equals to a under root beta by m आप ये करके देख लेना you will get a under root beta by m ओके सो मेन जो पर्पस है हमारा पर्पस को डिराइव करना नहीं है ठीक है अब इसको डिराइव करना हमारा पर्पस द पर्पस इज टू टेल यू गाइस दैट साउंड वेव इज बिहेविंग सिमिलर टू दिस वेव अंडर द कंडीशन लॉन्ग वेवलेंथ रीजन क्लियर है ना तो हम ये कह देते हैं कि इन द लॉन्ग वेवलेंथ रीजन देयर इज अ वेव एक साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही है लैटिस में मीडियम में एक साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही है ऑब्वियसली द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव कोई बताया कितना होता है अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इसका वेवलेंथ ना बहुत ही ज्यादा होता है अप्रोक्सीमेट आई गेस मिलीमीटर ऑर्डर का होता है ओके ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर ओके सम 10 और 20 मिलीमीटर की वेवलेंथ की होती है इसकी बट देखना भी ध्यान से व्हाट आर द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन द लैटिस वो किस ऑर्डर की होती है एक्सआरडी में बताया था मैंने किस ऑर्डर की होती है अप्रोक्सीमेट एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की दैट इज 3 एंगस्ट्रॉम और 2 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है ठीक है ना नाउ सी व्हाट हैपन हियर let's suppose this is our atom which we have discussed as the one dimensional monoatomic lattice ठीक है ना let's suppose ओके इधर भी बना देते हैं ठीक है ना नाउ जस्ट लिटिल बिट विजुअलाइज द थिंग्स हियर देयर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितनी है अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -10 ऑर्डर की है ठीक है और जो वेव प्रोपेगेट हो रही है इस रीजन में लॉन्ग वेवलेंथ रीजन में वो किस ऑर्डर की मिलीमीटर रेंज की है दैट मींस वेव कुछ यूं करके ऐसे चली जाएगी इसीलिए हम इसमें अप्रोक्सीमेशन कर लिए थे दैट इज व्हाट लैम्डा इज मच ग्रेटर देन ए ठीक है ना दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द अप्रोक्सीमेटेड लैम्डा इज मच ग्रेटर देन भाई आप खुद देखो ना ये एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की है बहुत पास में होंगे वेव मिलीमीटर ऑर्डर की है वो आएगी और एक ट्रफ और एक क्रस्ट में वो काफी ज्यादा पॉइंट कंसीडर कर लेगी एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट व्हेन अ वेव दैट इज साउंड वेव विल प्रोपेगेट इट विल कंसीडर एज अ कॉन्टिन्यूअस मीडियम भाई जो डिस्क्रीट एटम्स थे ना वो अब क्या हो गए वो एक कॉन्टिन्यूअस सी सीरीज में दिखने लगे दैट इज वी कंसीडर एज अ continuous system क्लियर है अभी डाउट क्लियर हुआ why we are taking the long wavelength region yes नहीं आप अरे स्पेसिंग कांस्टेंट है बट आप इसके रिस्पेक्ट में देखो ना वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में देखो आप वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में देखो अगर कोई पार्टिकल है उस वेव के ऊपर से जा रहा है उसको ये सारे एटम्स कैसे दिखेंगे आप ये देखो ठीक है ना भाई अप्रोक्सीमेशन ऐसे ही तो लिया जाता है जब आप कॉन्टिन्यूअस सिस्टम की बात करते हो सुनो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉन्टिन्यूअस सिस्टम लेट्स सपोज यू स्टडी द वन हार्मोनी ऑसिलेटर इन द क्वांटम मैकेनिक्स आप क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनी ऑसिलेटर पढ़ते हो राइट आपको एनर्जी कैसे मिलती है डिस्क्रीट मिलती है h/2 3h/2 5h/2 जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाते हो वैसे वैसे क्या होता है एनर्जी सेपरेशन घटता चला जाता है अगर हम उसका टेम्परेचर घटता चला जाता है हाइड्रोजन एटम की बात कर लो इफ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोजन एटम में क्या होता है
ठीक है ना, स्पेसिंग ज्यादा होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, कम होती चली जाती है। थोड़ा सा और आगे, थोड़ा दूर पॉइंट पे जाओ, फारर पॉइंट पे जाओ, वहां पे क्या स्पेसिंग नहीं होती होगी? होती होगी, डेफिनेटली होती होगी, बट व्हाई वी टेक इज अ कंटिन्यूअस? बिकॉज वी नेग्लेक्ट दैट स्पेसिंग, हम उस स्पेसिंग को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? Yes. Okay. Now, the third point which I have to tell you that regarding the Brillouin zone. कुछ लोगों को प्रॉब्लम था Brillouin zone के रिगार्डिंग। देखो कि सर आपने Brillouin zone को ही क्यों आप इतना सा emphasize कर रहे हो, why this is so important, right? देखो होता क्या है, मैंने कल एक ग्राफ बनाया था, पूरा ग्राफ तो नहीं बनाऊंगा, बस जस्ट मैं आपको जस्ट बताने के लिए हो गया हूँ। देखो, this was omega and this was k, right? And the graph was like this. All right, and this point was what? Pi by a, and this point was minus pi by a. All right, ठीक है ना? Obviously this was our origin point. What happened after this point? इस point के बाद क्या हुआ था? The wave or the pattern got repeating itself. इसने अपना रिपीटिशन शुरू कर दिया था, यही हुआ था। सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो, माइनस पाई बाई ए टू, माइनस टू पाई बाई ए, माइनस थ्री पाई बाई ए, माइनस फोर पाई बाई ए, यही हुआ था ना। पीछे ग्राफ पलट के देख लो जो कल हमने प्लॉट किया था। सो द बेसिक फंडा इज द मेन प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द लैटिस, the main property of the lattice will consider by the wave vector k in the region minus pi by a to pi by a. जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वेव की, जो ये वेव वेक्टर मतलब कंसीडर करता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, दैट प्रॉपर्टी विल लाई माइनस पाई बाई ए टू पाई बाई ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या सर पाई बाई ए के बाद नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन आफ्टर दैट द रिपीटेशन विल स्टार्ट। इसके बाद आपको वही प्रॉपर्टी फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माइनस पाई बाई ए टू पाई बाई ए को इसीलिए एम्फसाइज किया जा रहा था कि जो भी प्रॉपर्टी है वो इसके लिए थोड़ी सी नई होगी। जैसे ग्रुप वेलोसिटी, इफ यू सी द ग्रुप वेलोसिटी, अभी मैं डिराइव करूंगा, ग्रुप वेलोसिटी विल बी जीरो एट पाई बाई ए एंड माइनस पाई बाई ए। ओके, बट ये इस रीजन के लिए नई प्रॉपर्टी, एक अच्छी मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, बट आफ्टर पाई बाई ए टू, टू पाई बाई ए, थ्री पाई बाई ए, फोर पाई बाई ए, क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो होंगी, किसी पॉइंट पे जीरो होंगी, बट वो प्रॉपर्टी कैसी होगी? इट विल रिपीटिंग इटसेल्फ। वो लैटिस अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेगा? रिपीट करने लगेगा। इसलिए हम उसको उतना तवज्जो नहीं देते हैं कि अरे ठीक है ये तो हो ही चुका है, ये तो हो रहा है, होने दो। बट दैट्स व्हाई वी बेसिकली emphasize in the solid and the condensed matter for the first Brillouin zone minus pi by a to pi by a. क्लियर है? किसी को कोई डाउट? Am I able to clear your doubt? Yes. एक डायमेंशन में जो लैटिस है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। हर एक डायमेंशन में मींस जैसे आपने 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और फर्स्ट डायमेंशन। देखो मैं भी 2 और 3 डायमेंशन पे नहीं गया हूँ। वी आर जस्ट टॉक, हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 डायमेंशनल मोनोटॉमिक लैटिस की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं हम। आप देखो कॉन्सेप्ट आप समझो, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में एग्जैक्टली वही चीज होने वाली है। बिकॉज भाई एटम्स कैसे अरेंज है? एटम्स आर अरेंज इन अ पीरियोडिक मैनर, राइट? मैं आपको दिखाऊंगा द एक्सप्रेशन यू विल गेट फॉर द फ्रीक्वेंसी, जस्ट यू हैव टू ऐड सम कॉस टर्म with this and you will get a for the 2 dimension और 3 dimension। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे, कुछ भी अलग नहीं करना होता है। मैं मोनोएटॉमिक लैटिस की बात कर रहा हूं, जस्ट टॉकिंग अबाउट द मोनोएटॉमिक लैटिस, ठीक है ना? आप इस पे फोकस करो, ठीक है? जो बताया जा रहा है आप इस पे एक बार फोकस करो। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहां तक कोई डाउट है? जनरली जो हमारा लैटिस है वो रिपीट करेगा। अरे बाबा कल ग्राफ प्लॉट किया था। आप उस ग्राफ को आप ग्राफ को कैसे एनालाइज करते हो ये बताओ? साइन का ग्राफ आता है, साइन का ग्राफ अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, या कॉस के ग्राफ की किसी की बात करो, आप ये कैसे बात करते हो
कि ओके एक अगर पूरी साइकिल को कंसीडर करें, लेट सपोज -2 पाई से -पाई से पाई, ठीक है ना, -पाई से पाई में अगर साइन वेव कोई फंक्शन दिखा रहा है, अपनी कोई प्लॉट दिखा रहा है, ऑब्वियसली उसके बाद वो फिर से रिपीट करने लगता है ना अपनी प्रॉपर्टी। बस वही चीज यहां पे भी हो रही है, दैट्स द सेम थिंग हैपनिंग हियर। -पाई/a to पाई/a, इट इज समथिंग न्यू। भाई ये यहां से लीनियर वेरी कर रहा है, मैक्सिमम होते होते दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है ना। मैक्सिमम होते होते क्या होगा, हल्का सा फ्लैटन हो जाएगा, क्योंकि द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, इट विल बी 0, ओके, इट विल बी 0 एट 2 पाई। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद क्या होगा, आप खुद ग्राफ देखो, इसलिए मैंने 3 पाई/a और 4 पाई/a इंक्लूड कर दिया था उसमें। ओके, जस्ट लुक एट द प्लॉट, द थिंग्स विल गेट ऑन रिपीटिंग। दैट्स व्हाई हम उसको ज्यादा अहमियत नहीं देते, हम उसको ज्यादा अटेंशन नहीं देते, अरे ठीक है ये तो, मतलब बेसिकली हमारा ये रहता है, दिस थिंग हैपन इन द फर्स्ट बिल्वन जोन and the same thing is happening in second billion zone, third billion zone, that's why just don't give the attention, but the thing happening in the first billion zone is quite specific। अब क्लियर है हम इतना बिलियन जोन के बारे में क्यों बात करते हैं, मतलब फर्स्ट बिलियन जोन के बारे में। ओके, क्लियर है, डाउट है किसी को डाउट है? ओके, नाउ there is one more thing just I want to discuss with you guys, nature of group velocity, nature of group velocity at the boundary of Brillouin zone। Okay, nature of group velocity at the boundary of Brillouin zone। See, what is our omega? Omega is root under 4 beta by m sin ka by 2, okay, obviously doing the mod। now find out the group velocity, group velocity इसकी find out करो। Vg will be equal to d omega by dk, right? So what will it become? Under root 4 beta by m, and it will be cos ka by 2 multiplied by a by 2। Clear? Now 2 and 2 will be cancelled out, and you will get group velocity is equals to under root beta by m, also a will be there, cos ka by 2, cos ka by 2, ठीक है ना। now we have to see the nature of this group velocity at the what, k is equal to 0 and obviously at the boundary of Brillouin zone, that is pi by a and minus pi by a। देखो क्या आएगा, first left at k is equal to 0, at k equal to 0, when you put k is equal to 0, cos 0 is 1 and Vg give you maximum group velocity, that is a under root beta by m। ये इसकी maximum velocity group velocity हो जाएगी at k is equal to 0, and at k is equals to pi by a, k is equals to pi by a पे क्या होगा, when you put the k is equal to pi by a will be cancelled out, cos 90 will become 0, that is group velocity will become 0, and similar thing will happen at also at k is equals to minus pi by a। ठीक है, at k is equal to 0, अभी प्लॉट करूंगा, group velocity become maximum, that is a under root beta by m, and the group velocity becomes 0 at boundary of first Brillouin zone, at the boundary of first Brillouin zone। obviously as I told yesterday, what is basically group velocity do, group velocity का काम क्या होता है, एनर्जी को कैरी करना। okay, that means the transmission of energy will stop at boundary of first Brillouin zone। obviously the group velocity is 0, अगर group velocity 0 है, that means energy का transmission नहीं हो पा रहा है। you can also write on your notebook that the transmission of energy will get stopped or will become 0 at the boundary of Brillouin zone। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि Brillouin zone के बाउंड्री पे ग्रुप वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, सो द transmission of energy will be 0 or stop at boundary of
फर्स्ट विल्मन जोन, बाउंड्री ऑफ फर्स्ट विल्मन जोन। नाउ लेट्स प्लॉट दिस, इसको प्लॉट करते हैं, कैसा आएगा कोई बता सकता है? बहुत ही सिंपल है ये तो। ओके देखो इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा। सर हाँ सर ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी जीरो की ग्रुप वेलोसिटी जीरो है तो कैसे? ग्रुप वेलोसिटी क्या करता है, कल मैंने बताया था, इट बेसिकली कैरी द एनर्जी ऑफ द लैटिस। लैटिस की जो एनर्जी है वो ये कैरी करता है अपने साथ में। तो जब वही जीरो हो गया तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे, मैं क्या कह रहा हूँ, एट द बाउंड्री ऑफ विल्मन जोन, उस पॉइंट पे एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, बिकॉज ग्रुप वेलोसिटी इज जीरो। उसके बाद फिर से वो स्टार्ट करेगा, उसके बाद फिर से वो स्टार्ट करेगा, फिर से पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा, एनर्जी को कैरी आउट करेगा, और फिर जाके अगले विल्मन जोन की बाउंड्री पे जाके जीरो हो जाएगा। सर फिजिकली ऐसा क्या हो रहा है कि वो पैकेट पूरा जो भी पैकेट बनाना है फिजिकली? फिजिकली देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है XRD का, ठीक है ना, ये ब्रैग्स लॉ को फॉलो करने लगता है एट द बाउंड्री ऑफ विल्मन जोन, ठीक है ना। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो तो मैं उसको आपको पर्सनली क्लास में बता दूंगा, मतलब मैसेज में बता दूंगा, ठीक है ना। वो एक्चुअली होता क्या है, बाउंड्री पे, विल्मन जोन की बाउंड्री पे जब वेव मतलब एनर्जी का ट्रांसमिशन जीरो हो जाता है तो ये स्टैंडिंग वेव की तरह कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये स्टैंडिंग वेव में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है ब्रैग्स लॉ का, ठीक है ना। तो वो दैट्स नॉट इन द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट्स आई डिडंट मेंशन, ओके। यही हो रहा है और बाकी इसमें कुछ नहीं है एक कंप्लीट साइकिल पे, ठीक है ना। लेट्स प्लॉट द ग्राफ फर्स्ट। किसके बीच में ग्राफ है, VG और K के बीच में, राइट, VG एंड K। नाउ दिस इज पाई बाई A, दिस इज माइनस पाई बाई A, okay, and this is your maximum point. Maximum point means Vg is equals to what, A under root beta by m, all right। now और ये ऑब्वियसली ये जीरो है ना, तो जीरो पे कितना था, मैक्सिमम पॉइंट था, पाई बाई ए पे जीरो हो रहा है, माइनस पाई बाई ए पे जीरो हो रहा है, सिंपल सा ग्राफ आ जाएगा इसका, ऑल राइट। कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा, मतलब ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा ये वेव टाइप में आएगा, बता रहा हूँ, इट विल समथिंग लाइक अ वेव टाइप, मतलब बेसिकली ये डिक्लाइन कर जाएगा ऐसे जीरो पाई बाई ए की तरफ, हाँ यूं, ठीक है ना। सो दिस शुड बी द ग्राफ ऑफ Vg वर्सेस K, ठीक है ना। K इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, पाई बाई ए पे माइनस पाई बाई ए पे जीरो हो रहा है, और फिर से ये क्या करेगा, रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, then we'll further move for the diatomic lattice. I have sent you some question, please guys look at gate question, gate 2012, सबको मिला, please respond, everyone got the question, yes, please read it। the dispersion relation of a one dimensional monatomic crystal with lattice spacing A which interact nearest neighbor harmonic potential is given by omega equal to capital A sin Ka by 2, okay, where he is given that A is a constant of appropriate unit, constant of appropriate unit, group velocity at the boundary of first Bilber zone। देखो क्वेश्चन आया है, ग्रुप वेलोसिटी एट बाउंड्री ऑफ फर्स्ट बिल्वर जोन क्या होगा, जीरो, सिंपल है, अभी अभी फाइंड आउट किया है। देखो आप लोग के कंपटीशन एग्जाम का ना बहुत ही फेमस क्वेश्चन है लैटिस वाइब्रेशन का, ये व्हाट शुड बी द ग्रुप वेलोसिटी एट बाउंड्री ऑफ बिल्वर जोन, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। जो लुक एट द सेकंड, उसी का ये सेकंड पार्ट है, ये कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, इसी का सेकंड पार्ट है। द फोर्स कांस्टेंट बिटवीन द नियरेस्ट नेबर ऑफ द लैटिस वेयर कैपिटल M इज द मास। फोर्स कांस्टेंट बेसिकली क्या निकालने को कह रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने की बात कर रहा है, फाइंड आउट करो, देखो कितना आएगा इसमें। ऑप्शन ए दैट इज ma²/4, सबका आ रहा है, एवरीवन गेटिंग, एवरीवन इज गेटिंग,
देखो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा मैक्स साइन k/2, राइट। और इसी को इसने किससे शो किया है, कैपिटल ए से शो किया है। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज व्हाट, अंडर रूट 4 बीटा बाई m, and you have to find the value of beta here, squaring both sides. You will get beta is equals to m a square by 4, m a square by 4. ये पूछा था आपसे, क्लियर है? नाउ just solve the question number 3. Please solve everyone. Ratio of phase velocity and the group velocity. Ratio of group velocity and phase velocity. पूरा क्वेश्चन पढ़ो. The dispersion relation of a phonon in a one-dimensional monatomic Bravais lattice with lattice spacing a consisting ions of mass m given by the omega. Okay. Where omega is the frequency of oscillation, k is a wave vector, c is a spring constant. बेसिकली जो हमने बीटा से डिनोट किया है ना, इन्होंने सी से डिनोट कर दिया है। ओके, नाउ फॉर द लॉन्ग वेवलेंथ मोड दे आर आस्किंग फॉर व्हाट, लॉन्ग वेवलेंथ रीजन। ओके, कल डिराइव किया था ना, क्या होगा, 1 आ जाएगा। कल डिराइव किया था ना, वी हैव डिराइव्ड यस्टरडे इन द लॉन्ग वेवलेंथ रीजन वीपी दैट इज फेज वेलोसिटी इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी, दैट मींस रेशियो विल बी 1। ठीक है ना, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ गो टू द नेट क्वेश्चन पार्ट। नेट का क्वेश्चन जो आया हुआ है, अ यूनिफॉर्म लीनियर मोनोएटॉमिक चेन इज मॉडल बाय अ स्प्रिंग मास सिस्टम। बेसिकली दे आर गिविंग यू इंफॉर्मेशन by a nearest neighbor distance a spring constant omega m omega naught square. The dispersion relation for this system, dispersion relation for this system क्या पूछ लिया है, सीधा सीधा डिस्पर्सन रिलेशन ही पूछ लिया इन्होंने। Which option is correct? ये कैसे करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना भाई, सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। ओमेगा नॉट की उन्होंने वैल्यू भी दे रखी है, देखो ओमेगा नॉट, आई गेस ही हैज गिवन ओमेगा नॉट। हाँ बिल्कुल, स्प्रिंग कांस्टेंट को एम ओमेगा नॉट स्क्वायर बोला है ना भाई, दे हैव गिवन बीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। बस यहां से आप ओमेगा नॉट फाइंड आउट करो और इसी इक्वेशन में रख दो। ठीक है ना, गेटिंग, एवरीवन गेटिंग द आंसर? किसी को डाउट है? हो गया या डाउट है? ओके, नाउ मूव टूवर्ड द लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन नेट टू दिसंबर 13 में आया था। नाउ मूव टूवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, जून 12। देखो आप लोग डायमेंशन की बात कर रहे थे ना, 3 डायमेंशन की, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं। सी द डिस्पर्जन रिलेशन, द डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ फोनॉन्स इन अ सॉलिड इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, आई एम राइटिंग हियर, omega square is equal to omega naught square in the bracket minus 3 cos kx a minus ky cos ky a minus cos kz a। ठीक है ना, देखो मैं आपको बता रहा हूं, if they will ask the question on a 2 dimension and 3 dimension, they will ask the question like this only. They are not going to ask कि बताओ frequency बताओ या कुछ और बताओ। आपको एक्सप्रेशन वो देंगे ही देंगे, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स में अभी तक ये क्वेश्चन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन से रिलेटेड आया है, दे हैव गिवन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। उन्होंने आपको ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया है एंड यू हैव जस्ट यूज द योर कॉन्सेप्ट। आपको अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है। कैसा कॉन्सेप्ट? लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, नाउ जस्ट रीड द क्वेश्चन। Omega square has been given the velocity of phonons at large wavelength. What they are asking? Vp at long wavelength. Find out करो सब लोग, देखो कितना आ रहा है। सर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या दे रहा है? √3 ओमेगा नॉट है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं आएगा, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है प्लीज। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी फॉर डॉग, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ओके प्लीज सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करूंगा यहाँ पे। देखो अब कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है आपको, ओमेगा दिया हुआ है, you know that we have to find the phase velocity, that is omega divided by the k, but use this concept, that is at a long wavelength regime. long wavelength में क्या हो जाता है, that is lambda tends to infinity and k tends to 0, and I told you as k tends to 0 sin theta is converted into theta and cos theta is converted into 1 minus theta square by 2. ओके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। इन लॉन्ग वेवलेंथ रिजीम और लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट sin theta is approximately equal to theta and cos theta is approximately equal to what, 1 minus theta square by 2, ठीक है ना, 1 minus theta square by 2। नाउ अब सॉल्व हो जाएगा, देखो मैं कर दे रहा हूं अगर जिससे नहीं हो रहा है। सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर इन ब्रैकेट 3, एक कर्ली ब्रैकेट इधर लगा दो, ओके नाउ सी cos kxa and we have to use the long wavelength limit, that is 1 minus kx square a square by 2 and this will be plus, माइनस कॉमन ले लिया ना, प्लस हो जाएगा, and similarly it will be what, plus 1 minus ky square a square by 2, all right, and similarly it will all again become plus 1 minus kz square a square by 2। ये पूरा एक ब्रैकेट में है, ठीक है ना, पूरा ब्रैकेट में। नाउ अब तो इजी हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, देखो -1 तो 1 1 1 3 और माइनस साइन के साथ 3, 3 minus 3 विल बी 0, कैंसिल आउट, एंड दिस माइनस एंड दिस माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करोगे इट विल बिकम प्लस, दैट इज यू विल गेट व्हाट, a square by 2 is common and in bracket you will get kx square plus ky square plus kz square, right, and obviously ये क्या होता है, kx square plus ky square plus kz square, वैल्यू कितनी होती है इसकी, k square होता है ना भाई, k वेक्टर को जब आप लिखते हो 3 डायमेंशन में तो उसका जब मैग्नीट्यूड निकालते हो तो यही आएगा ना k square। सो फाइनली आई एम राइटिंग हियर, finally your expression will become omega square is equals to omega naught square a square by 2 multiplied by k square, right, now or omega will be equal to omega naught a k by under root 2, this is your omega, and you have to find the phase velocity, that is vp is equals to omega by k, hence you will get what, omega naught a by under root 2, this is the answer। clear everyone? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इसका यूज करना आना चाहिए, किसका, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट का, और यूज करने में कुछ और ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस टू फैक्टर, जो कि आप बेसिक है कि अगर थीटा बहुत ज्यादा छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाता है एंड द कॉस थीटा कन्वर्टेड इनटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ फोनॉन्स, वेलोसिटी ऑफ फोनॉन्स, देखो जब वो ग्रुप, हाँ हाँ सर ये लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में है, इसलिए dt इक्वल टू vp, अगर कोई क्वेश्चन आया और कुछ भी ना मेंशन हो तो क्या, तो देखो अगर कुछ भी ना मेंशन हो, ठीक है ना, तो फिर भाई आपको वो बताएगा कि क्या निकालना है। सिंस इन अ लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट बोथ आर इक्वल, इन द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट दोनों ही वेलोसिटीज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। बट अगर वो शॉर्ट वेवलेंथ की बात करता है, शॉर्ट वेवलेंथ में नॉर्मल वेवलेंथ, कोई कंडीशन नहीं अप्लाई है, देन यू हैव टू गो टू द बेसिक ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 4 बीटा बाई m sin ka by 2, use that frequency relation and find out whatever he wants. If you want phase velocity, just find out, if you want group velocity, just find out.
Basically, obviously in the long wavelength region, both the velocities are same. तो आप कुछ भी निकालोगे ना, वो either phase velocity निकालो चाहे group velocity, आप group velocity निकाल दो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? अगर वो लिमिट नहीं लगाएगा, अगर वो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट नहीं लगाएगा, तो फिर वो आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि आपको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? और या फिर वो अगर उसको ग्रुप वेलोसिटी पूछना है, देन ही कैन आल्सो से दैट फाइंड आउट द मींस वेलोसिटी कैरीड बाय मींस फाइंड आउट द एनर्जी कैरिंग वेलोसिटी, ऐसे करके पूछ सकता है। बेसिकली वो एनर्जी को इंक्लूड कर देगा, जिससे आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी कौन कैरी करता है, ग्रुप वेलोसिटी कैरी करती है, नॉट फेज वेलोसिटी। ठीक है ना? Okay, so one dimensional monoatomic concept has been over. From tomorrow we will start the one dimensional diatomic lattice. अभी एक और है ना, दो बताया था ना, one more is there, one dimensional diatomic lattice. Diatomic में क्या हो जाएगा? There will be the two different atoms. Different atom means उनका मास अलग अलग होगा, और भी बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, देखेंगे कल उसको। ठीक है ना? क्लियर? Okay, okay, let's stop. Okay, thank you. Thank you. Thank you.